پیپلز مارچ پد یاترا میں کسانوں کے تحت CLP لیڈر پر اپنی مشکلات پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ کسان چیخ رہے کہ KCR حکومت کو آلے روح حلقے جانا چاہیے۔ مسائی پیٹ کی یاترا پر جاتے ہوئے کسان CLP لیڈر کے پاس آئے اور ان کی حالت زارت دیکھنے کے لیے انہیں اناج خرید مرکز لے گئے۔ خریداری مرکز تقریباً 10 دنوں میں کھل جائے گا۔ کسان کلیم ملیا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا کہ اب تک ایک بھی کنٹل کا وزن نہیں ہوا ہے۔ بے وقت بارش کے لیے اناج کو گھاس پر ڈالا گیا ہے، خشک کرنا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ وہ دن رات شاپنگ سینٹر میں آگ جلا رہے ہیں۔ انہوں نے شکایت کی کہ یہ حکومت کسانوں کو ہراساں کر رہی۔ کسانوں کی حالت زار سن کر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ کسانوں کو انصاف ملنے تک وہ لڑیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ کانگریس کی حکومت آنے کے بعد وہ کلالہ میں اناج کی خریداری کو یقینی بنائیں گے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر محمد علی شبیر نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ BJP اور TRS حکومتیں اپنی اخلاقی ذمہ داری کو نظر انداز کر رہی اور اناج کی خریداری کے معاملے میں کسانوں کی محنت کو غیر منصفانہ حکمرانی کی گواہ بنا کر سیاست کر رہی۔ کسان مخالف پالیسیوں سے چاول کے کاشتکاروں کو ہراساں کرنا بند کریں اور انہیں کاٹا گیا ہر اناج خریدے۔ کانگریس پارٹی کسانوں کی جانب سے اس وقت تک لڑے گی جب تک اسے نہیں خریدا جاتا۔ سابق وزیر و سابق کونسل اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے منڈل میں کسانوں کا ہر گیلا اناج خریدنے تک کانگریس پارٹی کی جانب سے احتجاجی پروگرام منعقد کرنے کی بات کہی اور خریداری مراکز کے حساب سے اور جب تک کسانوں کو معاوضہ نہیں مل جاتا۔ కామారెడ్డి నియోజకవర్గం మరియు కామారెడ్డి జిల్లాలో మళ్ళీ అకాల వర్షాలు రాళ్ల వర్షాలతో పంటలు నష్టపోయినాయి। వరి పంటలు కానీ మన ఇతర పంటల్లో మామిడి తోటలు కూరగాయలు నష్టమైపోయినారు। దానికి ప్రభుత్వం జరిగి దాదాపు 6 దినాలు అయిపోయినా ప్రభుత్వం స్పందించలేదు। కాబట్టి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు ప్రతి మండలాల్లో మండల్ హెడ్ క్వార్టర్లో రైతుల సహకారం తీసుకొని రైతులతో మీరు అక్కడ రాస్తారోకో ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టండి। ఇప్పటి వరకు అంటే మనకు ఎకరానికి 20,000 చొప్పున నష్టపరిహారం చెల్లించాలా। తర్వాత ఏ గింజలు బయట ఉన్నాయో ఆ వరి గింజలు నానినవి కానీ మొలకలు వెళ్ళినా కానీ ఏదైనా అన్నీ ఏం కటింగ్ లేకుండా పూర్తిగా కొనుగోలు చేయాలా। అలాగే ఇతర పంటలు నష్టమైన దానికి ఉదాహరణగా మన మామిడి తోటలు కానీ కూరగాయలు కానీ మక్కల తోట కానీ దాని అన్నీ కూడా ప్రభుత్వం నష్టం చెల్లించే వరకు మరి రిలే హంగరీ స్ట్రైకు లేకుంటే వాళ్లకు ఏది అనుకూలంగా ఉంటే అది చేయండి। తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి నేను జిల్లా వ్యాప్తంగా నేను కూడా ఈ ధర్నాలో పాల్గొంటున్నాను। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी लीडर भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा 46वें दिन आलेर में यौम मई की तकरीबात के साथ ही शुरू हो गई थी और पंचायत सेक्रेटरियों को यकीन दिलाया कि वो कानून साज असम्बली में उनकी मुलाजिमतों को बाकायदा बनाने के बारे में आवाज़ उठाएंगे। भट्टी विक्रमार्का, जिनका आलेर से अवामी मार्च पदयात्रा कोलानुपाका, राजानगरम, दोडी, वेंकटापुरम, रघुनाथापुरम गांव से गुजरा, पंचायत सेक्रेटरियों ने कांग्रेस लीडर से नुमाइंदगी की कि आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पंचायत सेक्रेटरियों का तवील वक्त तक काम मामूली तनख्वाहों और मुलाजिमत की हिफाजत के साथ इस्तेहसाल किया जा रहा। CLP रहनुमा ने कारकुनों के मुख्तलिफ जुमरों से बातचीत की और फलाही स्कीमों के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने सुस्त रफ्तारी से जारी अंडरपास रेलवे पुल के काम का जायजा लिया और कहा कि वो काम की सुस्त रफ्तारी को असम्बली में उठाएंगे। एक बीड़ी कारकुन पोशम अरुणा ने बीड़ी कारकुनों के दुखों के बारे में भी बताया।
जवाहर नगर म्यूनसिपालिटी के तहत हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खाली प्लॉटों पर गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है। जवाहर नगर HMDA के जमीनों में गैर कानूनी तामीरात को मंगल की सुबह HMDA स्टेट ओहदेदारों और इन्फोर्समेंट मिशनरी ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर मुनद्दम कर दिया। हुकाम ने HMDA के तहत मुख्तलिफ सर्वे नंबरों में तकरीबन 3000 गज के इलाकों में पाई जाने वाली गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। उनमें 3 मकानात, 5 तहखाने, कुछ बिजली के खंभे और कुछ अहाते की दीवारें शामिल हैं। साबिक रुकने पार्लियामेंट व बीजेपी लीडर विजय शांति ने कहा है कि तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की लागत से नया सेक्रेटेरिएट तामीर किया गया। उन्होंने कहा है कि आया आवाम को उनके मसाइल हल करने के लिए उन्हें सेक्रेटेरिएट तक रसाई हासिल रहेगी, ये $1 मिलियन का सवाल बन गया है। विजय शांति ने अपने बयान में बताया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में रियासत के अवाम साबिक चीफ मिनिस्टर्स और साबिक वज़रा से सेक्रेटेरिएट में या उनकी रिहाइशगाहों पर मुलाकात करते थे। वो उनसे रुजू होकर उनके मसाइल हल करवाते थे। तेलंगाना के क़याम के बाद और KCR के वज़ीर आला बनने के बाद नज़्म व नस्क़ की सरगर्मियां प्रगति भवन और फार्म हाउस तक महदूद होकर रह गई थी। अवाम को उनके मसाइल हल करवाने के लिए वज़ीर आला और रियासती वज़रा भी दस्तयाब नहीं। जिले कांग्रेस कमेटी के सदर मनाला मोहन रेड्डी ने कलेक्टर को मशवरा दिया कि वो किसानों की मदद करे जिनका बेवक्त बारिश से नुकसान हुआ है। जिले कांग्रेस कमेटी के सदर मनाला मोहन रेड्डी की सदारत में PCC के नायब सदर ताहिर बिन हमदान, PCC जनरल सेक्रेटरी नागेश रेड्डी और जिले किशन कांग्रेस के सदर मोपा गंगा रेड्डी ने जिले कलेक्टर के साथ मिलकर फसलों के नुकसान के ताल्लुक से जिले कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया। इस मौके पर जिले कांग्रेस कमेटी के सदर मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि बेवक्त ज़ालाबारी की वजह से शदीद नुकसान उठाने वाले किसान आसमान की तरफ देख रहे, क्योंकि वो नहीं जानते कि अपना दुख किसको सुनाए और जब लोग मुसीबत में पड़ते हैं तो वो इस वक्त आसमान की तरफ देखते हैं। విభాగాల అధికారులను కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఉంచాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేశాం। అంతేకాకుండా ఇప్పుడు కట్టాల్సిన పంట రుణాలను రద్దు చేసి ఆ రైతును ఆదుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేశాం। మూడవది, ఈ రోజు తీవ్రంగా నష్టపోయిన రైతు రేపు మళ్ళీ వర్షాకాలంలో ఏ విధంగా పంటలు వేయాలి, ఏ విధంగా ఈ భూమిని చదును చేసుకోవాలని అర్థం కాని స్థితిలో ఉంటే ఆ రైతుకు పూర్తిగా నష్టపోయిన రైతుకు ఎకరానికి 50,000 రూపాయలు ఎక్స్గ్రేస్ చెల్లించేదిగా ఈ ప్రభుత్వానికి విన్నవించమని కలెక్టర్ గారికి మెమోరాండం ఇచ్చాం। అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక రుణాలు ఇప్పుడు రాగానే కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు జీబులు పట్టుకొని వస్తారు, మిగతా బ్యాంకుల వాళ్ళు తాళాలు వేయడానికి వస్తారు। ఈ సందర్భంలో దీర్ఘకాలిక రుణ कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी के दौरे तेलंगाना के शेड्यूल को खतियत दे दी गई है। प्रियंका गांधी 8 मई को हैदराबाद का दौरा करेंगी। अपने दौरे के दौरान वो सरोर नगर में मुनक़िद शुदनी बेरोजगारों की दीक्षा और एहतजाजी रैली में भी हिस्सा लेंगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना कांग्रेस क़यादत की जानिब से पहले ये ऐलान किया गया था कि प्रियंका गांधी 5 मई को हैदराबाद का दौरा करेंगी। ताहम मौजूदा तौर पर प्रियंका गांधी कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जानिब से प्रियंका गांधी के दौरे तेलंगाना की तारीख में तब्दीली का फैसला किया गया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जानिब से जारी करदा तब्दील शुदा शेड्यूल के मुताबिक प्रियंका गांधी 8 मई को हैदराबाद आएंगी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 3000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि एक दिन पहले के मुकाबले में तकरीबन 1000 की कमी दर्ज की गई। इस मुद्दत में 10 मरीजों की मौत हुई है। दरअसल मुल्क में कोरोना टीकाकारी का अमल अभी जारी है और इस सिलसिले में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2180 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है और अब तक मुल्क में 220,66,68,613 अफराद की टीकाकारी की जा चुकी है। मंगल को वजारत सेहत की जारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में मुतासरीन की कुल तादाद 4,49,52,996 हो गई। फौल मामलों की तादाद 3,071 कम होकर 44,175 हो गई। इसके साथ ही मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,31,564 हो गई। इसी मुद्दत में कोरोना इन्फेक्शन से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,379 से बढ़कर 4,43,77,257 तक पहुँच गई। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।